اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ وادی عشق کی تعریف۔ وادی عشق میں سوائے آگ کے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ جو شخص سر سے لے کر پاؤں تک آگ نہیں ہوتا وہ عاشق نہیں کہلا سکتا۔ عاشق وہی ہے جو آگ کی طرح جلتا ہے، اس کا چہرہ گرم ہوتا ہے، یہ لوگوں کو جلاتا ہے اور سرکش و دیوانہ ہوتا ہے۔ یہ شخص ایک لمحہ کے لیے بھی عاقبت اندیشی یعنی مستقبل کا خیال نہیں کرتا، اور اس کے خون سے سینکڑوں جہانوں میں آگ لگ جاتی ہے۔ اسے ایک گھڑی کے لیے کفر اور ایمان کا خیال نہیں آتا، اور اسے شک و یقین کی کچھ پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کے لیے برائی اور بلائی سب برابر ہیں۔ جب خود عشق آ جاتا ہے تو پھر کسی اور چیز کی پرواہ نہیں رہتی۔ اے شخص جو حلال و حرام میں گرفتار ہے، عشق کرنا تیرے بس کی بات نہیں ہے، اور مرتد ہونے کا شوق تیرے دل میں نہیں ہے۔ عاشق کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے سب سرمایہ عشق میں لگا دیتا ہے، اور اپنے دوست کے وصال کے شوق میں مست و مغرور رہتا ہے۔ دوسرے لوگوں کو تو قیامت کے دن کا وعدہ دیا جاتا ہے کہ اس روز جنت ملے گی، لیکن وہ لوگ جو خدا کو پہچانتے ہیں یعنی عارف، ان کو سب چیزیں اسی دنیا میں مل جاتی ہیں۔ جب تک تو اپنے آپ کو جلا کر خاک نہیں کر دے گا، اس وقت تک تو مصیبت سے نجات نہیں پا سکتا۔ جب تک کہ ریشم خود نہیں جلتا، اس وقت تک دوائی کے طور پر استعمال نہیں ہو سکتا۔ مچھلی جب پانی سے نکل کر خشکی پر آ جاتی ہے تو تڑپتی رہتی ہے تاکہ پھر اپنی جگہ واپس لوٹ جائے۔ معشوق کا عشق آگ ہے اور عقل دھواں ہے۔ جب عشق آ جاتا ہے تو عقل خود بخود بھاگ جاتی ہے، آگ جلتے ہی دھواں غائب ہو جاتا ہے۔ عشق کے جنون میں عقل استاد اور ہوشیار نہیں ہے۔ عشق مادرزاد عقل کا کام نہیں ہے۔ مادرزاد وہ عقل جو بچہ ماں کے پیٹ سے لے کر نکلے۔ تو نے آج تک بخشنے والے کو نہیں دیکھا، اور عشق کی جڑ بھی نہیں دیکھی کہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ مست شخص عشق کی مستی میں اپنی ہستی سے آہستہ آہستہ باہر نکل آتا ہے، یعنی دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اگر تجھے غیب کی باتیں دیکھنے والی آنکھ مل جائے تو تو تمام دنیا کے بھیدوں سے آگاہ ہو سکتا ہے، اور اگر تو عقل کی آنکھ سے دیکھے گا تو عشق کا سر اور پاؤں نظر نہیں آئیں گے۔ یعنی عشق کی منزل بہت کٹھن ہے۔ عشق کرنے کے لیے کسی درد مند دل کی ضرورت ہے، اور کسی آزاد منش شخص کی ہمت سے عشق کی منزل طے ہو سکتی ہے۔ نہ تو درد مند ہے اور نہ تو عاشق، تو مردہ ہے، اس لیے عشق کے لائق نہیں ہے۔ اس عشق کے راستہ پر چلنے کے لیے بہت زیادہ ہمت والے اور زندہ دل شخص کی ضرورت ہے، تاکہ ہر سانس میں 100 جانیں قربان کر دے۔ ایک شخص کا جو کی شراب فروخت کرنے والے لڑکے پر عاشق ہونا۔ ایک شخص اپنے گھر سے بے گھر ہوا اور ایک جو کی شراب فروخت کرنے والے لڑکے پر عاشق ہو گیا۔ اس کے عشق میں یہ شخص دیوانہ ہو گیا، اور اس بدنامی کی وجہ سے اور بھی بے خود سا ہو گیا۔ جو کچھ بھی اس کے پاس مال و دولت تھا سب بیچ ڈالا، اور اس لڑکے سے شراب خرید لی، اور جب اس کے پاس کچھ نہ رہا تو فقیر ہو گیا، اور اس کے عشق کا زور اور بھی زیادہ ہو گیا۔ اگرچہ تمام لوگ اسے روٹی دیتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ بھوکا رہتا تھا، کیونکہ جس قدر بھی روٹیاں اسے ملتی تھیں یہ انہیں بیچ کر جو کی شراب خریدتا تھا۔ ایک شخص نے کہا کہ اے مصیبت زدہ شخص، یہ عشق کیا بلا ہے، مجھے اس کا بھید بتا۔ اس نے جواب دیا کہ سینکڑوں جہانوں کی دولت بیچ کر انسان عشق میں جو کی شراب خریدتا ہے، اور ہمیشہ انسان بھوکا رہتا ہے تاکہ تھوڑی سی جو کی شراب خرید لے۔ جب تک انسان پر یہ مصیبت نہیں پڑتی اس وقت تک وہ عشق اور اس کے درد سے واقف نہیں ہوتا۔ مجنو کا کھال پہننا اور ریوڑ کے ساتھ لیلا کے قبیلہ میں جانا۔ لیلا کے قبیلے کے لوگ مجنو کو اپنے علاقے میں نہیں آنے دیتے تھے،
उस जंगल में एक चरवाहा रहता था। दीवाने मजनू ने उससे एक खाल ले ली और सर झुकाकर उस खाल में अपना सर डाल लिया और भेड़ बन गया और उस चरवाहे से कहा कि खुदा के लिए मुझे अपनी भेड़ों में शामिल कर ले, ताकि मैं इस रेवड़ में मिलकर एक घड़ी के लिए लैला की शक्ल देख लूं, ताकि मैं अपने माशूक से छुपकर इस खाल में उसकी शक्ल देख सकूं। अगर तेरे दिल में एक लम्हा के लिए भी इश्क का ऐसा दर्द उठता तो तेरे हर बाल की जड़ में एक मर्द होता, तू हिम्मत वाला होता। लेकिन अफसोस कि तू इस दर्द से नाआशना है और हिम्मत नहीं रखता, और तेरे दिल में मर्दों की सी हिम्मत और ताकत नहीं है। आखिरकार मजनू ने खाल पहन ली और रेवड़ में मिलकर अपने माशूक की तरफ चला। पहले तो खुशी में इसे बहुत जोश आया, लेकिन बाद में इसके होशो हवास गुम हो गए। जब इश्क का जुनून उस पर सवार हुआ तो उस चरवाहे ने मजनू को सहरा में ले जाकर छोड़ दिया और उस मस्त के चेहरा पर पानी छिड़का, ताकि थोड़ी देर के लिए इश्क की आग दब जाए। इसके बाद एक दीवाना मजनू चंद लोगों के साथ जंगल में बैठा था। उन लोगों में से एक ने मजनू से कहा कि ए आली मर्तबा शख्स, तू नंगा क्यों रहता है? तू जो कपड़ा भी पसंद करे मैं फौरन तेरे लिए ले आता हूं। उसने कहा कि आशिक के काबिल कोई कपड़ा नहीं है, मेरे लिए मेरी खाल से ज्यादा कोई उम्दा लिबास नहीं। मैंने भेड़ की खाल मांगी थी, लेकिन मेरी आंखों को उसने काले दानों की तरह जला दिया। अब मजनू की खाल ही अतलस और रेशमी कपड़ों का काम देती है। जो लैला का आशिक होता है वो सिर्फ खाल पहनता है। मैंने खाल पहनकर अपने माशूक की शक्ल देखी थी, फिर मैं खाल के सिवा कोई दूसरा लिबास कैसे पहन सकता हूं? मेरे दिल को अपने माशूक की खबर खाल पहनकर हुई, क्योंकि मेरे मगज में छिलके बराबर बोझ बर्दाश्त करने की भी ताकत नहीं है। इश्क को चाहिए कि अक्ल सीखे और अपने दिल से अपनी सिफात और बुराइयां निकाल दे। इंसान सिफतों के समंदर में सबसे हकीर मखलूक है। अगर तू अपनी जान की बख्शिश चाहता है तो गुरूर और फिक्र को दिल से निकाल दे। अगर तुझे इन बातों का मर्तबा हासिल है तो इश्क के रास्ता पर कदम रख, क्योंकि इश्क कोई हंसी खेल नहीं है। एक मुफलिस का अय्याज पर आशिक होना और उसकी सुल्तान महमूद से गुफ्तगू। एक मुफलिस शख्स अय्याज पर आशिक हो गया और ये बात सब जगह मशहूर हो गई। जब अय्याज घोड़े पर सवार होकर बाहर निकलता तो ये शख्स उसके साथ साथ भागता, और जब अय्याज मैदान में जाता तो ये आशिक उसके सामने गेंद की तरह भागता। एक दिन जबकि अय्याज मैदान में गया तो ये आशिक भी उसके साथ भागा। लोगों ने ये बात महमूद को भी सुना दी कि फलां फकीर अय्याज पर आशिक हो गया है। उसने अय्याज के गेंद जैसे रुखसारों को देख लिया था, इसलिए वो खुद गेंद बन गया था और इश्क की चौगान की चोटें खाई थी। चौगान एक खेल है जो बिल्कुल मौजूदा जमाने के पोलो की तरह खेला जाता था। सुल्तान महमूद ने छुपकर कई मर्तबा उसे देखा कि उसका चेहरा बालों की तरह स्याह था, उसकी कमर चौगान की लकड़ी की तरह झुकी हुई थी और ये बालों की तरह सरगर्दा परेशान था और मैदान में चारों तरफ गेंद की तरह दौड़ता फिरता था। महमूद ने उसे बुलवाकर कहा कि ए फकीर, क्या तू बादशाह के बराबर रुतबा हासिल करना चाहता है? क्योंकि अय्याज बादशाह का मंजूर नजर है। उसने जवाब दिया कि खा मैं फकीर हूं या नहीं हूं, लेकिन इश्क करने में तेरे से कम नहीं हूं। इश्क और गुर्बत दो हमसाए हैं जो करीब करीब रहते हैं, और इश्क का सरमाया ही इफलास व गुर्बत है। इश्क गुर्बत में और भी ज्यादा होता है और गरीब ही इश्क कर सकता है। तू बादशाह है और अपने मालो दौलत से दुनिया को रोशन करता है, तुझे इश्क से क्या काम? इश्क तो मैं गरीब और दिल जला कर सकता हूं, तुझे तो वसल नसीब है। तू हिजर में एक लम्हा तो सब्र करके देख, तू वसल हासिल कर सकता है। तू हिजर की मुश्किलात बर्दाश्त कर, अगर तू इश्क में मजबूत है। बादशाह ने जवाब दिया कि तू अपनी हस्ती से नावाकिफ है, तू सब चीजों को अपनी तरह गेंद समझता है। फकीर ने कहा कि गेंद मेरी तरह बेकरार है, मैं उसकी तरह और वो मेरी तरह बेचैन है। मेरी कदर कीमत वो जानता है और उसकी कदर मैं जानता हूं। हम दोनों उसके चौगान में गेंद की तरह हैं, हम दोनों इश्क में दीवाने हो गए हैं।
اور اپنی جان اور سر تک اس راستہ میں قربان کر دیا ہے، یعنی میں اور تو۔ اس کو میری حالت کی خبر ہے اور میں اس کی حالت سے واقف ہوں، اور ہم دونوں اپنے عشق کا حال ایاز سے کہتے ہیں۔ میری وجہ سے بادشاہ کو اور بھی عزت حاصل ہوئی ہے کہ میں اس کے گھوڑے کے نال کو کبھی کبھی بوسہ دیتا ہوں۔ اگرچہ میں گیند کی طرح پریشان حال ہوں، لیکن میں مصیبت کی کڑیاں جھیلنے کو تیار ہوں۔ گیند ایاز کی چوگان کے زخم کھاتی ہے اور میں یہ تمام زخم اپنے دل اور جان پر برداشت کرتا ہوں۔ اگرچہ گیند کو بھی بہت زخم لگتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی تسلی کے لیے یہی کافی ہے کہ ایاز اس کے پیچھے گھوڑا دوڑاتا ہے، اور وہ میرے دل پر اس قدر زخم ہے۔ لیکن ایاز میرے پیچھے گھوڑا نہیں دوڑاتا، بلکہ میں اس کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہوں۔ گیند تو کبھی کبھی ایاز کے سامنے پڑی رہتی ہے، لیکن میں اس سے ہمیشہ دور رہتا ہوں۔ جب گیند کو ایاز کا قرب نصیب ہو جاتا ہے تو اسے مسرت اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ مجھے ایاز کا وصل کبھی نصیب نہیں ہوتا۔ وصل کے معاملہ میں گیند مجھ سے سبقت لے گئی ہے۔ سلطان محمود نے جواب دیا کہ اے میرے فقیر، تو نے میرے سامنے اپنی غربت کا دعویٰ کیا ہے۔ اے فقیر، اگر تو نے جھوٹ نہیں بولا تو تیری مفلسی نے تیری گواہی دی ہے کہ تو عاشق ہے۔ فقیر نے جواب دیا کہ جب تک میری جان ہے میں غریب نہیں ہوں، بلکہ ایاز کے عشق میں تیرا مد مقابل ہوں۔ لیکن اگر ایاز کے عشق میں میری جان ختم ہو جائے تو اپنی جان قربان کرنا ہی غربت کی نشانی ہے۔ اے محمود، تو عشق کے مطلب اور حقیقت سے آگاہ نہیں ہے۔ اپنی جان قربان کر، ورنہ عشق کا بیکار دعویٰ مت کر۔ یہ کہا اور اس دنیا سے وہ فقیر چل بسا اور اپنے معشوق کے سامنے جان دے دی۔ اگر تیرے نزدیک جان دینا معمولی بات ہے، تو بھی اس میدان میں نکل کر دیکھ کہ یہ کام کس قدر مشکل ہے۔ جب اس رند نے اپنی جان اس طرح دے دی تو تمام دنیا محمود کی آنکھوں میں تاریک ہو گئی، یعنی بہت غم ہوا۔ اگر تجھے ایک لمحہ کے لیے بھی اندر آنے کی کہیں، اگر تو اس آواز کو نہیں سنتا تو آواز دے کر مطلب پوچھ۔ جب تو اس طرح حیران و پریشان پھرتا ہے، جو کچھ بھی تیرے پاس ہے عشق پر قربان کر دے۔ جب تو عشق میں گرفتار ہوگا، جب تمہیں ان باتوں کا علم ہوگا، اور تیری عقل اور جان تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ایک عرب کا ایران میں آنا اور اس کی قلندروں سے ملاقات۔ ایک شخص عرب سے ایران میں آیا اور ایران کی رسوم دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ وہ تماشا دیکھتا ہوا جا رہا تھا کہ اتفاقاً اس کا گزر ایک قلندر خانہ کے قریب سے ہوا۔ اس نے چند رندوں کو دیکھا کہ ان کو سر کا ہوش ہے، نہ پاؤں کی خبر ہے، اور تمام دنیا سے الگ خاموش بیٹھے ہیں۔ تمام خاموش تھے، چہرہ پر خاک ملی تھی، اور غلاظت میں ایک سے ایک زیادہ بھرا ہوا تھا۔ ہر ایک شخص کے ہاتھ میں شراب کی دلچھٹ کا کوزہ تھا اور اپنے سامنے یہ کوزہ لیے بیٹھے تھے۔ جب اس شخص نے ان لوگوں کو دیکھا تو ان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہی۔ سب قلندروں نے کہا، اے شخص اندر آ جا۔ اس کے پاس بہت سا مال و دولت تھا اور اس مال سے ہر ایک شخص کی جان خرید لیتا تھا۔ یہ رند آگے بڑھا اور اس نے اس عرب کو بہت زیادہ شراب پلائی اور اسے قلندر خانہ سے باہر کر دیا۔ یہ اسی طرح مست عرب تک چلا گیا کہ یہ پیاسا تھا اور مدہوش و مست تھا۔ اس کے رشتہ داروں نے کہا کہ تو شخص دیوانہ ہے، کیا تجھے مال و دولت کی کچھ خبر نہیں ہے؟ مال و دولت تیرے دیوانہ پن کی وجہ ہے۔ تجھے ایران جانے پر شرم آنی چاہیے۔ کیا تیرے راستہ میں ڈاکہ پڑا تھا؟ تیرا مال و دولت کہاں گیا؟ تو مجھے اپنا حال بتا۔ اس نے کہا کہ میں سیر کرتا ہوا جا رہا تھا، میری ملاقات ایک قلندر سے ہو گئی، پھر اس کے بعد مجھے معلوم نہیں کہ کیا ہوا، میرا مال ضائع ہو گیا اور میں درویش بن گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس قلندر کا حلیہ بتا۔ عرب نے جواب دیا کہ اس کی تعریف الفاظ میں یوں ہو سکتی ہے کہ وہ ایک گنوار شخص تھا جو فنا کی منزلیں طے کر رہا تھا، اور ہر وقت یہ کہے جاتا تھا کہ اندر آؤ، اندر آؤ، اس راستہ پر قدم رکھ اور اپنے سر پاؤں کی حفاظت کر،
या तो इस मंजिल में अपनी जान कुर्बान कर दे, वरना अपनी हिफाजत की तदबीर सोच। अगर तू इश्क के भेदों को बहुत ज्यादा मेहनत से खोल भी लेगा तो अपनी जान इश्क के रास्ता में दे देगा। तू अपनी जान दे देगा और हमेशा नंगा फिरेगा, और तेरी जुबान पर अंदर आओ के इल्फाज होंगे। शेख शिबली का हिकायत को अपने भाई से बयान करना। वो शिबली जो हकीकत बयान करता था, उसने ये हिकायत अपने भाई से बयान की। उसने कहा कि शहर के एक मदरसा में एक अमीर का लड़का था जो अपने हुस्न की वजह से दुनिया के खूबसूरत लोगों में गिना जाता था। उसका हुस्न कमाल के रजिस्टर की गोया फहरिस्त थी। जिस तरह फहरिस्त में तमाम कुतुब के मुतालिब मौजूद होते थे, इसी तरह इसके हुस्न में तमाम खूबियां मौजूद थीं, और उसके औसाफ व खूबियां सब हसीनों से बढ़कर थीं। जब वो मदरसा में उस्ताद से पढ़ने के लिए गया तो तमाम शागिर्द उसका हुस्न देखकर चिल्लाने लगे। उस मदरसा में एक दरवेश मुनश लड़का भी था जिसका बाप जूतियां सीता था और गरीब था। ये लड़का उस अमीर ज़ादे पर आशिक हो गया और उसका दिल बेकाबू हो गया। उस लड़के ने आज तक इश्क की मुश्किलात बर्दाश्त नहीं की थी। जिस तरह घास के एक तिनके की हालत होती है, उसी तरह इश्क के पहाड़ के सामने उसकी हालत थी। एक दिन मकतब में ये अमीर खुद आया और अपने लड़के के बराबर एक और लड़के को बैठा देखा। उसने पूछा कि ऐ लड़के, तेरा बाप क्या करता है? उसने कहा कि वो मोची है। आपका इस सवाल से क्या मतलब है? उसने कहा कि अगर मेरा लड़का इस मोची के लड़के के साथ रहा तो इसकी तबीयत में भी उसकी तरह सुस्ती आ जाएगी। उस अदब सिखलाने वाले शख्स ने मकतब में आने से इस गरीब मोची के लड़के को मना कर दिया और उस मोची के लड़के को अपने मदरसे से निकाल दिया, और वो लड़का हैरान सरगर्दा फिरने लगा। उस लड़के के इश्क में ये आग के जलते हुए कोयले की तरह हो गया और कोयले की तरह खाक में रहने लगा। इश्क उसके लिए नौरोज का दिन साबित हुआ। नौरोज के जमाने में जो 21 मार्च को होता है, बारिश होती है, यानी ये लड़का रोता था और ये दुनिया को जला देने वाली बिजली की तरह आहें भरता था। आखिरकार ये दीवाना हो गया। ये सर पर खाक डालने लगा और रंजो गम में मुब्तला हो गया। अमीर के लड़के को इसकी खबर मिली। उसने एक शख्स को उसके पास भेजा और कहा कि ऐ मुसीबत ज़दा, तू बता कि तू इस कदर क्यों रोता है और ये तमाम नालाउजारी किस वजह से है? उसने जवाब दिया कि मैं तेरे इश्क में गिरफ्तार हूँ। जो कुछ मैंने इश्क में मुसीबतें झेली हैं, खुदा किसी को न दिखाए। मैं एक अरसा तक तेरे इंतजार में रहा, तूने मुझे आग की तरह बेकरार और बेचैन रखा। वो शख्स ये सुनकर अमीरजादे के पास आया और कहा कि वो लड़का तुमसे इंसाफ तलब करता है। वो कहता है कि मैं तेरे इश्क में मुब्तला हूँ, मैं अपनी जान दिए देता हूँ, तू मत देख। अमीरजादे ने कहा कि ऐ बेसरोपा दीवाना शख्स, तू मेरे इश्क में इस कदर गमगीन मत हो। तू उसे मेरे पास ले आ ताकि दाना अपने खरमन यानी दानों का ढेर में पहुंच जाए। ये शख्स उस आशिक के पास गया और ये बातें उससे कहती। उस लड़के ने कहा कि अच्छा जरा ठहर जा, क्योंकि मेरा माशूक मेरा दिल मुझसे मांगता है, उसके हुक्म को ना मानना मेरे बस की बात नहीं है। वो लड़का अपनी जगह से उठा और एक खंजर से सीना चाक किया और दिल बाहर निकाल लिया और फिर उसे एक तबाक में रख दिया और फौरन एक सांस लेते ही मर गया। अमीरजादे ने जब ये तबाक देखा तो हैरान हुआ, क्योंकि उसने कोई चीज नहीं मंगाई थी और उसमें से एक खून में भरा हुआ दिल निकला, जिसे देखकर तमाम मकतब के लड़कों की आंखों से खून के आंसू जारी हो गए। उसने अपने आप को मार लिया और गम में मर गया और जो कुछ ना करना चाहिए था वो भी किया। अमीरजादे ने उस लड़के की खाक पर सजदे किए और हर वक्त उसके मातम में सोगवार रहा। अगर तू इश्क में कामिल है तो अपना दिल निकाल दे, और अगर तू हिम्मत वाला आशिक नहीं है तो इस तरह टींग मत मार। ऐ शख्स, तू अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा आलिम और बुजुर्ग समझता है, लेकिन इश्क के रास्ता में तेरी हालत एक बच्चा किसी है। उस आशिक की हिकायत जो अपने माशूक को मारना चाहता था। एक हिम्मत वाला शख्स था जो एक हसीनो खूबरू पर
आशिक हो गया। इत्तेफाकन उस आशिक का माशूक ज़ाफ़रान की तरह जर्द और बहुत कमजोर था। तमाम दुनिया उसकी आंखों में अंधेर हो गई, क्योंकि अपने माशूक की मौत को ये रोज बरोज करीब देख रहा था। जब मर्द आशिक को इस बात की खबर हुई तो ये हाथ में छुरी लेकर दौड़ता हुआ आया। उसने कहा कि मैं अपने माशूक को खुद मार दूंगा ताकि वो अपनी मौत न मरे। लोगों ने कहा कि तू अजब किस्म का शुरीदा सर है, भला उसे मारने में कौन सी अच्छाई है, उसे मत मार और उसका खून अपने सर मत ले, क्योंकि ये तो बहुत जल्द खुद ही मर जाएगा। मुर्दे को मारने से क्या हासिल, मरे हुए शख्स का सर सिर्फ बेवकूफ और जाहिल ही काटते हैं, अक्लमंदों का काम नहीं है। उसने कहा कि जब मेरा माशूक मेरे हाथ से मारा जाएगा तो इस जुर्म में लोग मुझे कत्ल कर देंगे, और जब कयामत आएगी तो इस कत्ल के बदले मुझे शम्मा की तरह जलाया जाएगा, सजा दी जाएगी। मैं उसके इश्क में आज ही कत्ल होना चाहता हूँ और कयामत के दिन दोज़ख में जलने की मुझे आरज़ू है। इसी दुनिया और आखिरत में मेरे लिए यही दोनों काम बहुत काफी हैं कि मैं उसको कत्ल करने की वजह से जलाया जाऊं। आशिक इस मोहब्बत के लिए जान भी देने को तैयार होते हैं और उन्हें दोनों जहानों से कोई मतलब नहीं होता। उनको अपनी जान प्यारी नहीं होती और तमाम दुनिया से कतई ताल्लुक कर लेते हैं। जब ये इस दुनिया से कतई ताल्लुक कर लेते हैं तो उन्हें अपने माशूक से वस्ल हासिल हो जाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इज़राइल को जान देना। खलीलुल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है। इज़राइल मौत के फरिश्ते का नाम है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर हालत नज़ा यानी मौत के वक्त की हालत तारी हुई तो आप इज़राइल अलैहिस्सलाम को आसानी से जान नहीं देते थे। आपने इज़राइल से कहा कि जाकर खुदा से कह दो कि इब्राहीम को मत मारे। खुदा ने कहा कि अगर तू मेरा दोस्त है तो अपने दोस्त यानी खुदा पर के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे। तेरी जान तो तलवार के जरिए लेनी चाहिए और तू अपने महबूब को जान देने से इनकारी है। एक शख्स ने सवाल किया कि ए दुनिया को रोशन करने वाली शमा, आप इज़राइल के सुपुर्द अपनी जान क्यों नहीं करते? आशिक हमेशा अपनी जान फिदा करने के लिए तैयार रहते हैं, फिर आप अपनी जान क्यों प्यारी रखते हैं? आपने कहा कि मैं अपनी जान क्यों दूं, जबकि इस मामला में इज़राइल का हाथ बीच में आ गया है। जबकि मैंने जिब्राइल की परवाह नहीं की तो फिर इज़राइल को कैसे जान दे दूं? जबकि मैं आग में जल रहा था उस वक्त जिब्राइल ने आकर मुझसे कहा, ऐ इब्राहीम मदद मांगो। मैंने उस वक्त जिब्राइल की परवाह नहीं की थी, क्योंकि सिवाय खुदा के तमाम रास्ते मुझ पर बंद हैं। मैं सिर्फ खुदा से मदद मांगता हूँ। मैं अपनी जान इसलिए इज़राइल के सुपुर्द नहीं करता कि खुदा मुझसे खुद कहे कि अपनी जान मेरी खिदमत में पेश कर। जबकि खुदा की तरफ से मेरी जान देने का हुक्म आ जाएगा उस वक्त तमाम दुनिया की कीमत मेरी आंखों में आधे जौ के बराबर भी नहीं होगी। मैं दोनों जहानों में अपनी जान किसी को नहीं दे सकता। अगर खुदा मुझे हुक्म फरमा दे तो मेरे लिए इस कदर ही काफी है, मैं फौरन जान दे दूंगा। अस्सलामुअलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।